Hello students, come to morphology of flowering plants, one of the hardcore botany lesson. Okay, and number of terminologies, example, fully based on Ratta. But if you think about logic and if you think about bit evolution, okay, being angiosperm flowering plant. एंजियोस्पर्म जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जो सीड फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस करता है. एंजियो enclosed, sperma seed, angiosperm, they are producing enclosed seed enclosed in a fruit. Those plants are called angiosperms. Angiosperms are most evolved plant group. Okay, so alga, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. तो उसमें जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे evolved plant group है. अलगा aquatic होते हैं, पानी के अंदर submerged, and they don't have well differentiated plant body. Bryophytes are amphibians, उनको पानी और जमीन दोनों चाहिए. They are velvety, grow on walls, grow on tree trunks. Pteridophytes are non-flowering land plants. Gymnosperms are seed bearing but not fruit bearing plants. Angiosperms are most evolved with seed enclosed in a fruit and they produce flower. Okay, so it is being an evolved plant group. It has well developed body, wonderful functioning, and perfect life cycle for better adaptation. Okay, so angiosperm में हमको हजारों adaptation दिखेंगे. वो सब adaptation हमको यहाँ पे सीखने हैं why. Okay, your question is why. The thing is, variety of resources are based on agriculture, and agriculture is mainly using angiosperms. All nurseries, horticulture, agriculture, right? Even in forest, what is dominant right now is angiosperm, and their life cycle is totally driving our economy. Okay, so modifications are always done in angiosperms. हमने जो भी genetic recombination किया, modification किए, सब हम angiosperm में करेंगे. क्यों? Because agriculture, which is one of the biggest industry on which our life is best, it's completely using angiosperm for development of variety of resources on large scale. So अगर हमको modification करने हैं, manipulation करने हैं, तो हमको उनके बारे में डिटेल जानकारी हो, ताकि कहाँ पे modification करने के बाद हम economically, yield wise, quality wise beneficial रहेंगे. ये सब जानना है तो हमको morphology, प्लांट की लाइफ साइकिल सीखनी है. अगर हमको प्लांट का लाइफ साइकिल ही नहीं पता होता था तो हम हाइब्रिडाइजेशन ना करते. हाइब्रिडाइजेशन ना करते तो ग्रीन रेवोल्यूशन ही नहीं आता. ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आता तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 होते ही रहता था. 4 पता नहीं, अभी कोरोना नहीं, वी वुड हैव बीन फाइटिंग वर्ल्ड वॉर 10. ओके, सो व्हाई वी आर हैविंग सेटल्ड लाइफ? बिकॉज ऑफ एंजियोस्पर्म. सो आई एग्री कि आप लोगों को ये पूरा लर्न करना बड़ा दिक्कत होता है, बट बेटा वन थिंग, whatever resources right now you are having are because of angiosperm, and whatever resources you will be obtaining will be from angiosperm. So if you want to work in drug industry, if you want to work in Ayurveda, if you want to work in agriculture, it may be forestry, wherever, it requires a basic knowledge. So this is what is there in your lesson. थोड़े एग्जाम्पल छोड़ दिए तो समझना बड़ा आसान है. समझ के चलो मतलब potato is a tuberous stem. potato, तो सबसे पहले आपको पोटैटो ध्यान में रखना चाहिए, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. सो वॉट एवर हाउ यू आर नोइंग, जो एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने है वो पहले आप डील करो, एंड देन उसको बॉटनिकल प्रॉपर्टीज से जोड़ो, ना कि बॉटनिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल में लाओ. एग्जाम्पल जो आप देख चुके हो वहां से शुरुआत करो. राइट? ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये चैप्टर अगर ऐसा लर्न करेंगे तो आसानी होगी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर एनी एंजियोस्पर्म, मैंगो प्लांट, हिबिस्कस, राइट, रोज, शेवंती, जाई, जुई, चमेली, जास्मिन, रोज, ये जो आप पूरा फॉरेस्ट में साग देखते हो, राइट, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट प्लांट देखते हो, गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट देखते हो, इसमें 99% कौन है? तो एंजियोस्पर्म. एनी प्लांट विच इज ट्रूली टेरेस्ट्रियल, जमीन पे ग्रो होने वाले प्लांट है, उसके बाद दो प्रकार के मेन प्लांट बॉडी होते हैं. प्लांट बॉडी विच इज ग्रोइंग इनसाइड द सॉइल, प्लांट बॉडी विच इज ग्रोइंग above the soil. Okay, that is aerial plant body and underground plant body. Aerial plant body is called shoot system,
and the underground plant body is called root system. Root is generally white in color. कौन सा भी रूट देखो, ओके, रेडिश खाते हो, मूला रेडिश खाते हो, व्हाइट इन कलर. कौन सा भी स्प्राउट खाते हो, उसका जो रेडिकल आता है व्हाइट इन कलर. सो दे आर नॉन क्लोरोफिलस. They grow in the soil. Okay, root system grows in the soil. So it is growing towards the gravity. It is positively geotropic. It is growing away from the light. So it is negatively phototropic. Positively geotropic के लिए और एक शब्द है, it is gravitropic. Geotropic, towards the soil it is growing. Gravity, towards the gravity it is growing. Okay, away from the light, negatively phototropic. It grows towards the water. It is hydrophilic activity इसमें आएगी, तो इसको हमको और क्या बोलना है? It will be hydrotropic. Okay, so root system is positively geotropic, negatively phototropic. One more word I want to add is positively hydrotropic. It will grow towards the soil. अब क्या नहीं जानते हो, सब जानते हो आप. Okay, then this root system, थोड़ा याद करो, रेडिश याद करो, कैरेट याद करो. Okay, कैरेट देखो एक्सेप्शन आ गया. Carrot is a root which is red in color because it is having a colorful pigment in it, carotene. कैरेट में है इसीलिए वो कलरफुल पिगमेंट का नाम कैरोटीन है. Okay, so some roots are colorful. Beetroot is colorful, but otherwise 90%, 99% are white in color. They are positively geotropic, growing towards the soil, away from the light. And root system produces root system. Okay, देखो, अगर आप like taproot की बात करते हो, ये रेडिश है, मूली. Okay, ये रेडिश है, ये मूली है. Okay, इसके ऊपर इसके पत्ते होते हैं इस प्रकार से. राइट, सो सी, ये जो पूरा रेडिश है, ओके, इसके ऊपर छोटे छोटे रूटलेट ही रहेंगे. कैरेट है, उसके ऊपर ये छोटे छोटे रूट के ऊपर रूट ही होते हैं. सो ये पूरा पहले आने वाला रूट, बाद में आने वाले रूट, बड़े रूट, छोटे रूट, root system is made up of roots only. So it is called homogeneous. Root system is homogeneous. It is made up of roots only. Okay, root के ऊपर leaf, root के ऊपर flower, root के ऊपर fruit वगैरह कुछ नहीं रहता. root के ऊपर सिर्फ root होता है. So it is homogeneous growth. Okay, so what's the meaning we wrote? Produce only one type of plant part. root के ऊपर root होता है. So it is homogeneous growth. Okay, then not divided into nodes and internodes. Okay, अब हम एक्चुअली रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके, स्टेम की अगर बात करते हैं तो स्टेम बेसिकली आप क्या देखते हो? व्हेन आई ड्रॉ अ स्टेम, सी द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ओके, सो सी, दिस इज अ शूट टिप. ये है इसका नोड, राइट, और ये पार्ट है इंटरनोड. नोड पे हमेशा लीव्स रहेंगे, नोड पे हमेशा मॉडिफिकेशंस रहेंगे. अब कौन से शब्द हमने यूज किए थे? स्टेम और लीफ के बीच में ये जो एंगल है, स्टेम और लीफ के बीच में ये एंगल है, इसको बोलते हैं एक्साइल. राइट, यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे फ्लावर भी आता है. राइट, स्टेम के ऊपर स्पाइन्स भी होते हैं, लीफ के ऊपर हेयर्स भी होते हैं. ओके, सो आपने क्या क्या देखा? देखो, स्टेम के बारे में आप क्या जानते हो? स्टेम के ऊपर नोड्स, इंटरनोड्स रहेंगे, डिस्टिंक्टली लोकेटेड. ऑन द नोड इट हैज लीव्स और इट हैज ब्रांचेस, देन इट हैज बर्ड्स, इट हैज थॉर्न, इट हैज फ्लावर, इट हैज हेयरी आउटग्रोथ. बराबर, एनाटॉमी में हमने सीखा था इट हैज ट्राइकोम. बराबर, सो स्टेम के ऊपर अलग अलग प्रकार की ग्रोथ होंगे. So it shows heterogeneous growth, right? तो आपके आंखों के सामने रूट भी है, आपकी आंखों के सामने शूट भी है. चलो डिफरेंसेस लिखते हैं. शूट सिस्टम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. मेरे साथ ही लिख रहे हो, अलग से नोट बनाने के लिए टाइम नहीं गवाओगे. इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. It is negatively
geotropic. Barabar? Then it is not growing towards water. It generally grows towards sunlight. Okay, then it is below the ground. यहाँ पे हम लिखेंगे shoot system is above the ground. Shoot system is above the ground. Okay, then next one will be, as it is showing root and it is showing variety of things, so it shows heterogeneous growth. It shows heterogeneous growth. Heterogeneous growth matlab it has leaf, variety of birds, then it is having branches, it has spines, it has thorns, right? So being it is having variety of growth, it is showing heterogeneous structure. Then it is well differentiated into nodes and internodes. It is well differentiated into nodes and internodes. Then remember, stem has ability to develop chloroplast. That's why it is green in color and it can perform photosynthesis. आप जानते हो स्टेम ग्रीन है, लेकिन अभी मैंने कौन सा स्टेटमेंट बनाया? स्टेम को अगर सनलाइट मिला तो वो क्लोरोफिल बनाने की क्षमता रखता है. मतलब अगर आपने मूली को, गाजर को सनलाइट में रखा, ओके, तो वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक कभी नहीं होगा. लेकिन अगर आपने किसी स्टेम को थोड़ा सनलाइट में रखा, पोटैटो इज स्टेम, ओके, पोटैटो को अगर आपने सनलाइट में रखा तो उसके जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वो ग्रीन कलर के बनते हैं, क्लोरोफिल बनाने की क्षमता रखते हैं. तो आप ऐसे ध्यान में रखते हो, स्टेम इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग ग्रीन प्लांट पार्ट्स, so it is photosynthetic because it is having ability to synthesize chlorophyll, chloroplast, right? So it can develop, it can produce chloroplast, okay, so photosynthetic organ. अब फोटोसिंथेटिक में स्टेम खुद अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं तो वो लीव्स बियर करेगा, लीव्स के मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट रहेंगे. ओके, सो स्टेम is having ability to develop chloroplast. Root cannot develop chloroplast. Root cannot develop chloroplast. Okay, चलो डिफरेंसेस लिखो. डिफरेंशिएट करते करते लिखेंगे तो कंपैरिजन भी होगा, ओके, और हमको याद रहने में आसानी भी होगी. ओके, so root and stem. See, the basic points we have covered. Now I have added a few important points which are different and will be related to other lessons, and these I have added with the help of red pen. Okay, basically what we did, we talk about root system, shoot system. Okay, now see, both are present in land plant. Well differentiated root system, well differentiated shoot system is present in land plant. Land plant means which grow on land, obviously terrestrial plant. Okay, so terrestrial plant have true roots, well developed root. Okay, so root system well developed, shoot system well developed body. उसको हमने बोला था जिसकी बॉडी वेल डेवलप्ड होती है वो एवॉल्व होता है, वो जनरली डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड फेज उनके लाइफ में डोमिनेंट होती है, राइट? सो दिस इज हाउ दे आर pteridophytes, gymnosperm and geosperms. Okay, then as we said, root system is basically positively geotropic, positively hydrotropic, negatively phototropic, but there are some exceptions. Normally ऐसे ही होता है, but there are some exceptions that some root systems are apogeotropic or they are neutral. Neutral मतलब ना वो ग्रेविटी को सेंस करती है ना वो सनलाइट को सेंस करती है. ऐसे न्यूट्रल रूट को हम बोलते हैं एपोजियोट्रॉपिक. नाउ एडिशनल वर्ड ध्यान में रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जियोट्रॉपिक यू नो, फोटोट्रॉपिक यू नो, इट्स एपोजियोट्रॉपिक. ओके, जो सरफेस पे ग्रो होगा. ओके, ऐसे कौन से रूट्स हैं?
ओके, सी साइकस के पास एक एडिशनल प्रकार का रूट होता है विच इज हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो ऐसे कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सॉइल के सरफेस पे ग्रो होंगे। आपने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइकोराइजा वर्ड सीखा था। इट इज फंगस इन एसोसिएशन विथ रूट्स, right? Okay, so like that there are some cyanobacteria like structure associated with roots and helping in nitrogen fixation. So that type of roots are apogeotropic. उसका नाम अभी बोल दे रही हूँ। साइकस में कोरल लाइक रूट, आपने एनिमेलिया में कोरल सीखे हैं। ओके, सो कोरल्स जो ओशन में ग्रो होते हैं, ओके, कोरल लाइक, कोरलॉइड, कोरल जैसे कोरलॉइड रूट्स are apogeotropic and they are neutral. They are not sensing the gravity. Okay, then one more point we know that root can't develop chloroplast. So यहाँ पे non-green structure. Okay, it is a plant part which is non-photosynthetic, non-green, unable to prepare food, helping in anchorage and transportation. Okay, ये non-green part पे non-chlorophyllous शब्द use करके MCQ पूछा जाएगा. Okay, then growing tip should are subterminal in case of root. मेरिस्टेमेटिक जोन जहां पे रूट कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है, वहां पे जो टर्मिनल मेरिस्टेम होगा, अपाइकल मेरिस्टेम होगा, वो रूट कैप से प्रोटेक्टेड होता है। तो ये पॉइंट हम एनाटॉमी में सीखते हैं दैट ग्रोइंग टिप इज अ टर्मिनल एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, इट इज सब टर्मिनल एंड प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। ओके, इसको कंट्रास्टिंग पॉइंट कहां पे जाएंगे स्टेम में? सी, स्टेम इज मेनली फोटोट्रॉपिक बट देयर आर एक्सेप्शंस। ओके, पोटैटो का ट्यूबर जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, जिंजर वो सॉइल के अंदर ग्रो होता है। ओके, सो एक्सेप्शन हर चीज को हमको मिलेंगे। ओके, अदरवाइज दे आर फोटोट्रॉपिक, दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, दे ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। ओके, एंड देन हियर वी यूज द वर्ड हेट्रोजीनियस ग्रोथ। ओके, उस पे एक एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शब्द है, दे शो डिसिमिलर अपेंडेजेस। स्टेम पार्ट, शूट is developing dissimilar appendages like leaf, thorns, spine, flowers, branches, okay, tendrils, isn't it? Hooks. Okay, because every structure is designed for functioning. बात को समझो। Okay, root का main काम है anchorage और support. So root is made up of root only, primary root, secondary root, tertiary root. Stem is not made up of stem only. It is made up of variety of appendages. And why variety of appendages? To continue with variety of work. Okay, so leaf का काम है फोटोसिंथेसिस करना, ब्रांच का है ग्रो होना, राइट, देन फ्लावर का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, टेंड्रिल वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर याद है ना, इट हेल्ड इन होल्डिंग द थिंग, हुक्स, ओके, क्लाइंबर को क्लाइंब करने में मदद करेंगे। सो ऑल दीज एपेंडेजेस आर वर्किंग और दो स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग। ओके, देन ग्रोइंग टिप इज टर्मिनल, shoot apical meristem is terminal and it is protected by leaf primordia, right? Okay, अब दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। See, this is a shoot we have drawn and shoot has variety of buds. Okay, ये शब्द ध्यान में रखो, shoot की बड जो होती है they are variety of buds. shoot के पास अलग अलग प्रकार के बर्ड्स रहेंगे। ओके, चलो कौन से बर्ड्स होते हैं? सी, अभी मैंने ये डायग्राम आपको समझाया था। ओके, ये शूट है, ये नोड है, नोड पे इसके लीव्स होते हैं, बराबर। ये जो एंगल है स्टेम और लीव्स के बीच में का, इसको हमने बोला एक्साइल। ओके, अगर एक्साइल में बड है तो ये बड को बोलते हैं एक्सिलरी बड। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बड। ओके, इट इज एक्सिलरी बड। ओके, अगर बड टर्मिनल पे है, okay, then it will be terminal bud. It will be terminal bud, बराबर। Okay, so axillary bud, terminal bud are very common. Okay, they cause terminal bud length बढ़ाएगी, axillary bud branching बढ़ाएगी, axillary bud flower भी develop कर सकती है, axillary bud branch बनाएगी या axillary bud flower बना सकती है जनरली, बाकी के modifications तो होते रहेंगे, बराबर। So this axillary bud, terminal bud are the main bud, लेकिन इसके अलावा कुछ buds फ्लावर के पास होंगे and those buds are if it is present above the axile. Okay, so ये axile के ऊपर अगर है ये axillary bud, so it will be
सुप्रा एक्सिलरी। एक्साइल की अगर ऊपर है तो सुप्रा एक्सिलरी, अगर वो कहीं पे भी है, स्टेम पे वो कहीं पे भी है, ओके, देन इट इज एक्स्ट्रा एक्सिलरी। सुप्रा एक्सिलरी अगर एक्साइल के ऊपर है तो, कहीं पे भी है तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। ओके, सो लिसन, बाय डेफिनेशन द बड इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन स्टेम। Bud is always present on stem. If it is not present on stem, then it is called adventitious bud. तो bud कहाँ पे होगी? bud या तो लीफ पे होगी, राइट, या फिर रूट पे होगी. So the bud which is present on the leaf or root is called adventitious bud. Okay, types of bud. Bud present at apices, apical bud, in the axil, axillary bud, above the axil, supraaxillary, anywhere extraaxillary, not on the stem, adventitious. If it is present on the leaf, then the bud, adventitious bud present on the leaf is called epiphyllous bud. चलो इसको लिख लो यहाँ पे, it is epiphyllous bud. Okay, so ये एक और point हम लिखेंगे that normally buds are absent on the stem. Buds are normally absent. If present, called adventitious bud. If present, called adventitious bud. And bud on the leaf is epiphyllous bud. Okay, so this is the introductory part of root and stem. So let us focus on root. रूट के साथ डिटेल में काम करते। देखो आपका कौन सा पॉइंट लिखने का बाकी तो नहीं है। लेट्स प्रोसीड टू टाइप ऑफ रूट्स। सी, अब बायोलॉजी में हमको बेसिक शब्द ध्यान में रखने हैं। सिंपल बेसिक वर्ड, एवरीवेयर व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड प्राइमरी, इट अराइजेस फर्स्ट इन द लाइफ, सेकेंडरी इट अराइजेस लेटर, देन द टर्शियरी। ओके, तो सबसे पहले जो लाइफ में होगा वो प्राइमरी, बाद में होगा वो सेकेंडरी, और उसके बाद होगा वो टर्शियरी। ओके, सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी। सो सी यू सो द सेड, राइट, embryo grows, germination of seed, radicle will grow towards the gravity, plumule will grow up. Okay, radical develop into a root which is primary in origin. वो प्लांट के लाइफ का पहला रूट है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। वो प्लांट के लाइफ का पहला रूट है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। दिस इज प्राइमरी रूट। ओके, जो प्राइमरी रूट के बाद आता है दैट विल बी सेकेंडरी। ओके, और सेकेंडरी के बाद आता है दैट इज टर्शियरी, राइट। सो सी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी रूट? इट डेवलप मेनली फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, एंड इफ इट परसिस्ट then it grows into taproot. Taproot is one solid. Okay, taproot के बारे में डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है तो see, this is ground level. Taproot is one solid, deep, penetrating, goes inside the soil. It's vertically growing downward. Its apical meristem is protected by root cap. It is a solid one, providing best anchorage. For water absorption, it is having a specific region that is with root hair, and it is mainly designed for absorption of water. So it is root hair zone of absorption, right? Okay, so this is a taproot. It is primary in origin. It is having this part is called zone of division. यहाँ पे कंटिन्यूअस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चलेगी। ये जोन ऑफ डिवीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रहेगा रूट कैप। ओके, जोन ऑफ डिवीजन के ऊपर यहाँ पे रहेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ डिवीजन के ऊपर रहेगा जोन ऑफ इलोंगेशन, वेयर द सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, एंड देन देयर विल बी रूट हेयर जोन। Root hair is a modified epidermal cell which is having a outgrowth which is at right angle to each other, and it is having more
surface area, so it absorbs more water. So this is zone of absorption. This is root hair zone. But please remember, according to NCERT, root hair zone is a part of zone of maturation. Okay, so in all there are three zones. One is zone of division, second is zone of elongation, and third one is zone of maturation. What is maturation? यहाँ पे आपको वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज नजर आएंगे. देखिए यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन शुरू होगा, बेसिक प्रकार के पैरेन्काइमा बनेंगे. ओके, यहाँ के सेल मॉडिफाई हो गए, रूट हेयर बनेंगे, और यहाँ से ये पॉइंट से हमको इसके आगे क्या मिलना शुरू होगा? विल गेट डिफरेंट लेयर्स. ओके, सेंटर का कॉलम रहेगा वेस्क्यूलर बंडल, और जो हमने टिपिकल लेयर लर्न किए, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड xylem phloem forming vascular bundle and centrally located pith. So zone of maturation में अगर हम TS लेते हैं तो हमको टिपिकल लेयर मिलेंगे. जोन ऑफ मैचुरेशन का सबसे लोअर पार्ट will be root hair zone, zone of absorption. Total number of zones are 3. Right? Okay. So अब और एक शब्द हमने सीखा था, अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट का ये जो पॉइंट है जो रूट को सपोर्ट दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बेस. राइट, दिस इज कॉल्ड बेस. बेस के नजदीक जो एंड होता है दैट इज प्रॉक्सिमल. बेस से जो दूर होता है वो डिस्टल. ओके, ये भी शब्द आप जानते हो. एक शब्द ध्यान में रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, और पूरी बाकी के वर्ड्स हमको ध्यान में रखने आसान होंगे. सो बेस के नजदीक जो है प्रॉक्सिमल. सो विच जोन इज प्रॉक्सिमल टू द रूट? इज इट जोन ऑफ मैचुरेशन और जोन ऑफ डिविजन? Zone of maturation. Which is distal end? It will be zone of division. Which is most distal? That will be root cap. Right? Okay. So this is how a taproot is vertically growing downward. It is primary in origin. It is developing from radicle, and taproot is also called true root, taproot, and it is primary root. Okay. It is divided into root hair, zone of maturation, most proximal. उसके बाद आएगा zone of elongation and zone of division. Proximal part of the maturation is near the base, and distal part of the zone of maturation is root hair zone, which is designed for. So taproot system के zones हमने देख लिए. Zone of maturation का end part, zone of absorption, root hair zone, zone of elongation, zone of division, root cap. Okay, अब देखो, ये रेडिकल से आ रहा है, लाइफ में पहली बार आया, सो इट इज प्राइमरी. ये रूट पे जो बाद में आएगा दैट विल बी सेकेंडरी, विच इज ग्रोइंग ऑब्लिकली. इट इज बिट थिन, इट इज हेल्पिंग इन प्रॉपर सपोर्ट. सो दीज आर कॉल्ड secondary roots. And if needed, there are tertiary roots on this. Okay, so see what I have written is primary root, secondary root on the basis of their origin. Right? चलो differences मैं आपको हमेशा dictate करूंगी, क्योंकि लिखा है तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट निकालते हो. I know you very well. बराबर. स्क्रीनशॉट से मोबाइल को ज्ञान मिलेगा. ओके, वो ज्ञान वाला मोबाइल हॉल में अलाउड नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में लेके नहीं जा सकते हो, तो आप लोग लिखोगे. राइट डाउन. डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट. फास्ट. प्राइमरी रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल. सेकेंडरी रूट डेवलप ऑन प्राइमरी रूट. It is primary in origin, appears first in life. It is secondary in origin, appear later on life. Primary root is called taproot, true root. Primary root is called taproot, true root if persist throughout the life. Okay, taproot तभी बनेगा जब वो persist करता है. Persist करता है मतलब जिंदगी भर वही जिंदा रहता है. Primary root is called taproot, true root if it is persist throughout the life.
secondary root arises later. Okay, उसके आगे लिखो secondary root arises later on primary root or after a death of primary root or after a death of primary root. Secondary root primary root पे आएंगे, लेकिन अगर primary root ही मर गया तो secondary root यहाँ पे नहीं आएंगे, ये secondary root होंगे fibrous root and adventitious root. See, if you sow a jawar grain, if you sow a wheat grain, what do you get? From the radical, primary root grows out, a baby plant grows, but the primary root, taproot, without proper development dies off. So immediately from the lower node, the plant starts developing fibrous root. Fibrous root always arises from the base of the node. That is what we are talking about monocot plant. In general, monocot में radical से grow हुआ taproot short-lived होता है. So basal node से immediately secondary root आता है. So that will be fibrous root. So what I said, secondary root arises on the taproot or from the base after a death of the primary root. After death of the primary root. Okay, then it is generally thin, obliquely present in the soil with many branches. It is generally thin, narrow, obliquely growing in the soil with many branches. Okay, then taproot grow vertically downward. Secondary roots grow obliquely. Okay, secondary roots are nothing but the lateral branches on the taproot, or they may be fibrous or adventitious. They may be fibrous or adventitious. लिख लिए point. चलो आप देखो. Fibrous roots, as I said, they are secondary in origin. They are found in monocot plant. When monocot seeds are sown, the primary root grows from the radical, which is short-lived. It readily dies. So from the lower node, the root which arises are called fibrous root, which cannot provide proper anchorage. Right? So बहुत ज़्यादा anchorage वो अच्छे से नहीं दे सकते. तो उसके साथ साथ additionally कुछ root आ जाएंगे, जिसका example हम बाद में देखेंगे, stilt root. लेकिन कभी कभी जैसे रनर है wheat. Okay, रनर कौन सा है? आपका ग्रास. Okay, bryophyllum का leaf. If the root develop from any other part of the plant, कहीं से भी root आ रहा है, स्टेम के कौन से भी नोड से आ रहा है, लोअर नोड से आया तो फाइब्रस, कौन से भी नोड से आया, then it will be adventitious. लीफ से आया adventitious, bulbil से आया adventitious. Right? So this is what is basic classification of the root. Now root is mainly designed for absorption, anchorage, absorption of water and mineral. It shows unidirectional movement of the water. Okay, and it is designed mainly for anchorage but absorption, anchorage plus absorption, but sometime it is even modified by a variety of things. So आज हमने basic information ली, root के modification अलग अलग प्रकार के हैं, वो modification next lecture में लेके. Please write down the differences. Now the last type, which word we use is rootlet. हमने कौन से शब्द यूज किए? Primary root, which originates from radical, is true root. It is solid one called taproot. Taproot originates first, so it is called primary. On this root, which arises later, are called secondary roots. Secondary roots develop one more type of branches. Those are called tertiary root. And then ultimate fine, very thin branches of the rootlets. Okay, so final branching rootlets. They are very thin, final branches, and they are arranged in acropetalous arrangement. See, this total arrangement of branches of root के जो भी branches है, वो total arrangement कैसी रहेगी? Oldest structure will be near the base, and young structure will be away from the base. Okay, so acropetalous, basipetalous.
Okay, see, these words, botanical words, acropetalous, basipetalous, centripetal, centrifugal, exarch, endarch, ये 6 वर्ड्स है। उसमें का exarch, endarch आपको शायद नया है, ठीक है, एनाटॉमी में हम सीखेंगे, लेकिन बाकी acropetalous, basipetalous, centripetal, centrifugal आप जानते हो, right? 6. These words, all the 6 words are designed on the basis of position of the small structure. Position of the small structure. अगर small structure टिप की तरफ है, सबसे छोटा रूट ब्रांच टिप की तरफ है और सबसे बड़ा रूट का ब्रांच बेस की तरफ है, तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर टिप की तरफ है इज acropetalous. अगर उल्टा है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर बेस की तरफ है तो basipetalous. सबसे छोटा स्ट्रक्चर अगर टुवर्ड्स पेरीफेरी है तो सेंट्रीफ्यूगल. सबसे छोटा स्ट्रक्चर अगर सेंटर की तरफ है तो सेंट्रीपीटल, राइट? ओके, वैसे ही एक्सार्च छोटा पार्ट, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स आउटर साइड, एंडार्च छोटा स्ट्रक्चर, प्रोटोजाइलम towards the center. Okay, so they are arranged in acropetalous succession. Okay, so this is all about the types of branches of roots on the basis of their origin. Okay, taproot radical से origin होता है, fibrous root taproot के मरने के बाद basal node से develop होता है जो secondary होता है, और adventitious root कौन से भी प्लांट पार्ट से ग्रो हो सकते हैं, एंड इट्स मेन रोल इज हेल्पिंग प्लांट फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ रूट्स आर मॉडिफाइड इन एन नंबर ऑफ वेज, सो लेट अस डिस्कस देयर मॉडिफिकेशन. ओके, प्लीज ऐड दिस पॉइंट ऑफ रूटलेट्स. See now, this is रट्टा का complete structure. रट्टा ऐसा मारोगे, रूट्स आपके आंखों के सामने रूट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. रूट्स आर ऑफ 2 टाइप, टैपरूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स. रूट का मेन फंक्शन है एंकरेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो, सिक्रीशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन PGR. रूट्स कुछ स्पेशल प्लांट ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है जो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, प्लांट ग्रोथ, लेकिन वहां पे नाम आपने जो 10th में भी सीखा है, इट इज मेनली सिक्रेटिंग ऑक्सिन, ओके, एंड सम अदर, बट मेन सिक्रेशन रूट अपाइसिस सिक्रेट द हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन. ओके, सो देखो आपकी आंखों के सामने टोटल रूट्स है, रूट्स टैपरूट एंड एडवेंटिशियस रूट, टैपरूट एडवेंटिशियस रूट. Now come to taproot. Taproot for storage. Okay, main function तो हो गया, इसके अलावा कुछ additional function वो करेगा. So see, for storage, it is fusiform, conical, napiform. अब बेटा थोड़ा vigilant हो जाओ. Just be little vigilant. You eat vegetables. You go to market. You see the vegetable. Since your childhood, you are knowing all these things. So यहाँ पे एक important thing, सिर्फ फ्यूजिफॉर्म शब्द नहीं बोलेंगे, उसके साथ एग्जाम्पल का नाम लेंगे ताकि झट से क्लिक हो, वो स्ट्रक्चर आपके आंखों के सामने आए. ओके, सी, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, ओके, मूड़ा, ओके, उसका शेप अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो ट्यूबुलर इलोंगेटेड होता है, थोड़ा अब्रप्ट शेप होता है, बहुत कैरेट जैसा स्पेसिफिक नहीं होता है, बेस पे वो ब्रॉड और देन नैरो होते जाएगा. Okay, so when I say the word radish, please recollect that diagram and then relate it. Okay, so ये जो भी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे बॉटनिकल टर्म के साथ एग्जाम्पल आएगा. सिर्फ बॉटनिकल टर्म आप यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूजन अवॉइड होगा, स्ट्रक्चर याद में रखेगा और MCQ बिल्कुल न गलत जाएगा. ओके, सो सी, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, पहले सिंपल नेम ही लर्न कर लो, बॉटनिकल नेम बाद में करते हैं, यही चार्ट को अपडेट करेंगे. फ्यूजिफॉर्म रेडिश, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, कोनिकल, इसका शेप कोन जैसा है, आइसक्रीम कोन जैसा है, ओके, खारे दाने खाते हो उसके कोन जैसा है, सो इट इज कैरेट. कोनिकल, कैरेट. नेपिफॉर्म,
इट्स लाइक बीच में बहुत swollen, succulent and abruptly tapering. Okay, beet नहीं देखा है आपने? Okay, so for storage, fusiform radish, conical carrot, napiform, beet, turnip. टर्निप के फ्लावर्स देखे होंगे आपने, उसके जमीन के अंदर वैसे ही कंद होते हैं. ओके, दैट इज फॉर स्टोरेज और इसका शेप बीटरूट जैसा होता है. सो दिस इज फॉर स्टोरेज. टैपरूट का एक और बहुत बेहतरीन मॉडिफिकेशन है, दैट इज ब्रीदिंग रूट निमेटोफोर्स. ब्रीदिंग रूट निमेटोफोर. ऐसे जो मैं बोलती हूँ, दो शब्द साथ में बोलो, वो शब्द आपको क्लियर करता है. ओके, सो ब्रीदिंग रूट निमेटोफोर आर फाउंड इन where the areas where the soil is waterlogged. It may be brackish, okay, it may be daldal jaisa pradesh, mangrove forest. Okay, so in that location when the soil is completely waterlogged, पानी से भरी है जमीन, तो ऑक्सीजन एयर पेनिट्रेशन कम होगा. so वो कंडीशन में रूट्स को अनेरोबिक रेस्पायर करना पड़ेगा. अनेरोबिक रेस्पायरेशन प्रोलॉन्ग नहीं चल सकता है. अनेरोबिक रेस्पायरेशन अगर प्लांट सेल में प्रोलॉन्ग चला तो अल्कोहल सिंथेसिस होगा, और उसकी वजह से अल्कोहल अगर एक्यूमुलेट होने लगा तो रूट सेल्स मरने लगेंगे. रूट मर गया तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन हैम्पर होगा और बाद में प्लांट मरेगा. सो अनएरोबिक रेस्पायरेशन कैन नॉट बी अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस, इट इज टेम्पररी. ओके, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में अनएरोबिक रेस्पायरेशन टेम्पररी शॉर्ट पीरियड के लिए होगा. बाद में एरोबिक कंडीशन अचीव नहीं हुई तो सेल मरेगा. सो फॉर अचीविंग एरोबिक रेस्पायरेशन इन सच वाटरलॉग्ड कंडीशन, द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल स्पेशल पॉजिटिवली phototropic ऐसा भी नहीं बोल सकते, but they come out of the soil. They are not positively geotropic. They grow above the soil and they are having lenticels. What are lenticels? Lenticels are the slits which are longitudinal furrows present on the nematode. Lenticels कैसे बनते हैं हमने देखा है. Lenticels are developed because the cork cambium from outer side doesn't produce cork, but it produces parenchymatous loosely arranged cell called complementary cells. These cells are making the epidermal tissue, developing a slit. Okay, और वो slit जो aeration करेगी, air diffuse होगी parenchyma में, okay, and अंदर के deep living cell के तरफ जाएगी. Okay, so this nematophore breathing roots found in मैंग्रोव फॉरेस्ट, दलदल के एरिया में मिलेंगे. ओके, उनके पास निमेटोफोर पे रेस्पायरेशन के लिए जो स्लिट होगी, दैट इज कॉल्ड लेंटिसिल. एंड द एग्जांपल आर राइजोफोरा, सोनेरेशिया, हेरिटारिया, एविसेनिया. ओके, इसमें का कौन सा भी एक नाम अगर आपने ध्यान में रखा है. ओके, अब ये राइजोफोरा आपने देखा है, डोंट नो, बिकॉज बाजार में नहीं मिलता, इट्स नॉट अ वेजिटेबल. ओके, अंडमान निकोबार वगैरह यहाँ पे जाते हो तो वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको बहुत दिखेंगे. ओके, सो एक ध्यान में रखना है, राइजोफोरा. ओके, देन ब्रीदिंग रूट. नाउ कम टू एडवांटेशियस रूट. एडवांटेशियस रूट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, फॉर सपोर्ट और मॉडिफाइड फंक्शन. ओके, इट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और सपोर्ट, और दे आर सम मॉडिफाइड फंक्शन. तो स्टोरेज के लिए अगेन शेप, सिंपल ट्यूबरस. अब आप पे लिए थोड़ा काम छोड़ रही हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे. ओके, देन फैसिक्युलेटेड. इसमें सिंपल और क्लस्टर से दो प्रकार होते हैं, बट ओनली वन इज गिवन हियर, सो फैसिक्युलेटेड एस्पैरागस. देन प्रोफ्रूट. बैनियन ट्री देखा है, ह्यूज, इसके जो 90 डिग्रीज में, मतलब ब्रांच में से जो 90 डिग्रीज में नीचे जाने वाला है, ओके, दैट इज अ प्रोफ्रूट. एडिशनल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है. स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन जवार बाजरा. Okay, if you sow the jawar seed, radical grow, develop into taproot. It is very short-lived. It will die. From lower node, it will develop fibrous root. Fibrous root are superficial, and as plant grow tall, it cannot provide mechanical support, so the plant may collapse. Okay, जैसे जवार का प्लांट, बाजरा का प्लांट ग्रो होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा हाइट की वजह से. तो टेंट जैसे, टेंट बांधते हो ना, टेंट को कैसे एडिशनल सपोर्ट देते हो, बीच में का कॉलम और सपोर्ट देते हो, राइट. सो टेंट जैसे जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, लोअर नोड से डेवलप होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट. ओके, फाउंड इन जवार बाजरा लाइक मोनोकॉट प्लांट. ओके, क्लाइंबिंग रूट, अब नाम बोल रहा है आपको, ये क्लाइंब करने में मदद करेगा. ओके, सो दो आर क्लाइंबिंग, हेल्पिंग इन क्लाइंबर टू क्लाइंब अप. ओके, सो ये देखो, सपोर्ट ब्लू पेन से लिखे मैंने स्टोरेज, सिंपल रूट फैसिक्युलेटेड. ब्लैक पेन से लिखे मैंने सपोर्ट के लिए
प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट. अब मॉडिफाइड फंक्शन, ओके, कुछ अलग काम करने के लिए. तो दिस एडवांटेशियस रूट विच आर इपीफाइट, ये शब्द देखना, इपी इज अबाउ फाइटाइज प्लांट, प्लांट के ऊपर प्लांट, इट्स नॉट पैरासाइट. ओके, सी इफ आई एम अ प्लांट, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ब्रांच, ये ब्रांच पे एक दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है, उसके रूट्स ये ब्रांच को होल्ड करते हैं सिर्फ सपोर्ट के लिए. इट इज होल्डिंग द ब्रांच ओनली फॉर सपोर्ट एंड दे आर वाइड स्प्रेड in the air and they absorb moisture from the air. They absorb moisture from the air. Okay, so these are epiphytic root. As they are above the soil, as they are getting sunlight, this is a special root which can go for CO2 assimilation. What is CO2 assimilation? C3 cycle याद करो photosynthesis में. CO2 फिक्स हो रहा है, CO2 assimilate हो रहा है, metabolic reaction में participate हो रहा है. So epiphytic roots are also called assimilatory root. ओके, एपिफाइटिक रूट, एसिमिलेटरी रूट. इपी मतलब अबाउ फाइटा, प्लांट के ऊपर ग्रो होने वाला प्लांट जो पैरासाइट नहीं है, सिर्फ सपोर्ट के लिए काम करता है. सो दोज आर एपिफाइटिक एसिमिलेटरी रूट. एग्जांपल लिखेंगे आप. सकिंग पैरासाइट, बचपन से आपने देखा है, कस्कुटा, अमरवेल. ओके, प्लांट के ऊपर एक येलो वायर जैसा स्ट्रक्चर ग्रो होता है. ओके, तो ये येलो वायर जैसा स्ट्रक्चर जो प्लांट के अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर सकिंग रूट डालता है, जो स्टेम में पेनिट्रेट होके उसके वेन तक जाते हैं और वेन में से वो फूड और नरिशमेंट एब्सॉर्ब करता है. दोज आर सकिंग रूट, पैरासाइटिक रूट. ओके, तो सबसे पहले ये चार्ट आपके आंखों के सामने क्लियर होना चाहिए. दिस इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट. रूट के टोटल मॉडिफिकेशन एक पेज पे आएंगे, राइट? और ये लिखो, फिर से लिखो, इसका स्क्रीनशॉट मत निकालो, फुल पेज लेना. आई डोंट वांट एनी डेकोरेशन, कोई कलर पेन वगैरह यूज करना नहीं है. ओके, टैपरूट के लिए एक ब्लैक यूज करेंगे, उसके लिए एक ब्लू यूज करेंगे, दैट्स इट. ओके, नाम एग्जाम्पल, नाम एग्जाम्पल, नाम एग्जाम्पल. और ये आज कल परसों एक शब्द 3 बार, रूट्स, रूट्स, टैपरूट, टैपरूट. मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज. फ्यूजिफॉर्म रेडिश, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, फ्यूजिफॉर्म रेडिश. कोनिकल कैरेट, कोनिकल कैरेट, कोनिकल कैरेट. नेपिफॉर्म बिट टर्निप, नेपिफॉर्म बिट टर्निप. ब्रीदिंग रूट्स, निमेटोफोर, ब्रीदिंग रूट्स, निमेटोफोर. Taproots modification, breathing root, nematophore, breathing root, nematophore. Rhizopora, rhizopora, Soneraceae, Soneraceae, Heritaria, Heritaria, Avicennia, Avicennia. Modifications of adventitious root, modification of adventitious root. For storage, simple tuberous, sweet potato, simple tuberous, sweet potato, fasciculated asparagus, fasciculated asparagus. Prop root, okay, modification of adventitious root for support. Prop root, banyan tree, prop root, banyan tree. Stilt root, jawar bajra, stilt root, jawar bajra. Climbing root, climbing root. Okay, it will be your money plant like. Then adventitious root modified for special function. Epiphytic root, assimilative. Epiphytic root, assimilatory. Example, sucking root, parasitic root. Sucking root, parasitic root. Example, Cuscuta, Amarvel. अब यहाँ पे और 2 ब्रांचिंग कर सकते हो, complete parasite and partial parasite. Only for water or for food. ऐसे 3 बार दिन में से लाउड रीडिंग करना ही है. और लाउड रीडिंग करते वक्त आंखों के सामने वो एग्जाम्पल आए. वन मोर थिंग आई टेल यू, इसका एक वॉइस नोट बना के रखो. स्क्रीन, कागज कितने बार देखेंगे? एक बार आपके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी ये चार्ट की बैठ गई. ओके, तो आंखें बंद करके बैठना है शांति से. आंखों, आपके कानों में ईयरफोन लगेंगे, राइट? और पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, उसके साथ बोलो. ओके, अपने आप 3 दिन में लर्न होता है. लेकिन मैंने जो बोला कि 2 शब्द साथ में, ब्रीदिंग रूट, निमेटोफोर, ब्रीदिंग रूट, निमेटोफोर, एपिफाइट, एसिमिलेटरी, एपिफाइट, एसिमिलेटरी, ऐसे जोड़ शब्द बोलने ही हैं, उससे कंफ्यूजन अवॉइड होता है. प्लीज राइट इट डाउन अगेन. नो डेकोरेशंस. विद इन 5 मिनट इट शुड कंप्लीट. डन. 2 फुल पेज पे फटाफट कर लो. आंखें बंद करके रिकलेक्ट करो.